رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے۔ رشتے کی آڑ میں اگر سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دیں۔ یہ مت سوچیں کہ تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں۔ اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، لیکن اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ غصے میں انصاف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے۔ دیوار میں لگا پتھر خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اپنی قیمت رکھتا ہے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے صاف کر دیتا ہے، اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک لیتا ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، لفظ خود کہتا ہے میں ممکن ہوں۔ کسی کو نصیحت کرنا آسان ہے، مگر کسی سے نصیحت سننا بہت مشکل ہے۔ انا کی تسکین کے لیے مخلص لوگوں کو کھو دینا سب سے بڑی جہالت ہے۔ عزت اسے دی جاتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت وہی قبول کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی عزت کروا سکتا ہے۔ آپ زندگی کا فلسفہ کیسے سمجھ سکتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا؟ اکثر لوگ ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں جو اپنی سمجھداری دکھا کر دوسروں کا دل نہیں توڑنا چاہتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز غربت ہے، کیونکہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے، وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ سب سے بڑا منافق انسان خود ہوتا ہے، کیونکہ صرف اپنے ہی مطلب کی بات پسند کرتا ہے، اور جو ہمارے خلاف بات کرے چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، غلط ہی لگتا ہے۔ مرد شکست کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ تباہ ہو سکتا ہے لیکن شکست نہیں کھا سکتا۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنے ارادے کا پہلے سے اعلان نہ کرو۔ اگر کامیاب نہ ہوئے تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پیسہ خوشی نہیں لاتا، لیکن یہ ہمیں اپنی تکلیف عیش و عشرت سے گزارنے دیتا ہے۔ کسی ایسے انسان کو دھوکہ دینا جس کے پاس آپ کا کوئی راز موجود ہو، خود کو عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اپنی حدود سے اتنا آگے نہ نکل جانا کہ امید کو تم تک پہنچنے میں بہت دیر لگے۔ کامیاب آدمی ہمیشہ اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دوبارہ دوسرے طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ سنجیدگی کو برقرار رکھو، کم بات کرو اور اپنی بات کو برے لوگوں سے بچائے رکھو۔ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو اپنی فرصت ضائع نہ کرو۔ ہر مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ محبت ہو، پیسہ یا پھر عزت۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
बर्दाश्त हर बार तमाम मसाइल का हल नहीं होती। जुबान की हिफाजत दौलत की हिफाजत से ज्यादा मुश्किल है। गिरने के डर से अगर बच्चे को खड़ा नहीं करेंगे तो वो चलना कैसे सीखेगा। दुनिया का सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान वो है जो किसी का मोहताज नहीं। लंबी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। गुनाह का इल्म होना उससे निजात का आगाज है। जहां जिंदगी है वहां उम्मीद है। उम्मीद का दामन कभी हाथ से मत जाने दो। कभी अपना मुकाबला दूसरों के साथ मत करना। हर किसी की जिंदगी अलग है। लोहे का कुल्हाड़ा लकड़ी के दरख्त से एक छिलका तक नहीं उतार सकता जब तक उसके साथ खुद लकड़ी का दस्ता शामिल ना हो। अना से बचो, ये वो तेज तलवार है जिसका बैरूनी किनारा आपकी शोहरत को काटता है और अंदरूनी किनारा आपकी मासूमियत को। दो चीजों की आदत बनाएं, मदद करना या कम से कम किसी का नुकसान ना करना। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना उस साथ से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स कुचल डाले। किसी इंसान से बाआसानी धोखा खा लेने से बेहतर है कि उसे पहले एक दो बार आजमा लिया जाए। अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसका शुक्रिया अदा जरूर करें ताकि वो किसी और की मदद करने में खुशी महसूस करे। जिनको मंजिलों की फिक्र हो वो लज्जतें देखकर रुकते नहीं, अपना सफर जारी रखते हैं। आप जिस सुनहरी मौके की तलाश कर रहे हैं वो आपके अपने अंदर मौजूद है। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी आसाइशें हैं जिनका उसे बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। जब आप गुस्से में हों तो कभी भी कुछ ना करें वरना आप सब कुछ गलत करेंगे। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। खुश इखलाकी एक ऐसा इतर है जिसे जितना ज्यादा दूसरों पर निछावर करेंगे उतनी ही ज्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नजर आने लगता है। जिसका अच्छा दोस्त हो उसे आईने की जरूरत नहीं होती। जरूरत से ज्यादा हर चीज कुदरत के खिलाफ है। महज चाह लेने से कुछ नहीं होता, उस चीज के लिए अहल होना भी जरूरी है। दुनिया की हर चीज इंसान को फायदा देती है, इंसान को नुकसान देने वाली चीज खुद इंसान है। अपने हक के लिए जद्दोजहद करें, चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों न हो। अगर आप खुद कामयाबी चाहते हैं तो दूसरों को कामयाबी हासिल करने में मदद करें। पैसे को अपनी जिंदगी में उतनी ही अहमियत दो जिससे तुम सुकून की नींद सो सको। इतनी अहमियत ना देना जो तुम्हें बेसकून कर दे और तुम्हारी रातों की नींद और जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दे। वो चीज आपको कभी परेशान नहीं कर सकती जिसकी आपको ख्वाहिश ना हो। इंसान के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो एक ही गलती को बार बार दोहराता है। खुश रहना ये जानना है कि थोड़े पर कैसे राजी रहा जाए। लोगों की नजरों में भरोसेमंद बनने के लिए काबिल एतमाद बनो। इंसान का रवैया सिर्फ उन्हीं के साथ तलख होता है जिन पर उसका जोर चलता है, और जिन पर जोर नहीं चलता उनके लिए वो मुनाफिक होता है।
आपके पास जो नहीं है उसके बारे में सोच के वक्त जाया ना करें। ये सोचें कि आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। हर रोज अपना चेहरा आईने में देखते रहो। अगर आपकी सूरत बुरी है तो कोई भी बुरा काम ना करो, ताकि दो बुराइयां आपस में ना मिलें। अगर आपकी सूरत अच्छी है तो बुरा काम करके उसको खराब ना करो। गहरी दोस्ती वो होती है जो कम मुलाकातों की सूरत में मुतासिर नहीं होती। आप जिस चीज की तलाश करते हैं उससे आप अपनी कदर जाहिर करते हैं। अगर इंसान को ये बात समझ में आ जाए कि जिंदगी मंजिल नहीं, तवील सफर में एक मुख्तसर सी क़यामगाह की मानिंद है, तो उसकी जिंदगी की सारी उलझनें खत्म हो जाएं। अपने कीमती दिल को आरजी लोगों से महफूज रखें। अहमियत का ताल्लुक काम और किरदार से है। जिसके पास ये दो चीजें नहीं वो अहम नहीं। फैसला करने के बाद उस पर अमल करने में कभी देर मत करें। मायूस कर देने वाली गुफ्तगू कभी ना सुने। अपना मुंह सिर्फ उस सूरत में खोलें जब आपकी बात खामोशी से ज्यादा खूबसूरत हो। लोग सोचना पसंद नहीं करते क्योंकि वो सोचेंगे तो नताइज पर पहुंचेंगे, और नताइज हमेशा खुशगवार नहीं होते। खुश रहने का राज इसमें है कि आप लोगों की बातों को अहमियत सिर्फ उतनी ही दें जितनी वो आपको देते हैं। अपनी जिंदगी में जज्बात की बजाय अक्ल की हुक्मरानी को फरोग दो, क्योंकि हर गलत फैसले के पीछे अक्ल की बजाय जज्बात का गलबा होता है। बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा करो, उनके तजर्बात और दानाई का कोई मोल नहीं। जोड़ तोड़ की इस दुनिया में हर चीज काबिल मुरम्मत है सिवाय एतबार के। इनकार इस दुनिया में मौजूद ताकतवर तरीन रवैयों में से एक है। लोगों को खुश करने वाले ना बनो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे तारीक लम्हा ही शायद तुम्हें जिंदगी का बेहतरीन सबक देकर जाए। खुशी को खरीदा नहीं जा सकता, ये तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा होती हैं। जो शख्स भी अपनी जात पर काबू ना पा सके वो आजाद नहीं है। तुम कोई मुनफरिद इंसान नहीं हो। तुम्हारी जगह लेने के लिए तुम सा ही कोई अच्छी फितरत वाला इंसान यकीनन मौजूद होता है। कुछ चीजें तुम्हारे रास्ते में जरूर आती हैं, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं होती। एक छोटा सा झूठ एक मजबूत रिश्ते में दरार का सबब बन सकता है। सुस्ती और काहली तुम्हारे अज़ाइम की हसूल की राह में रुकावट है। जो लोग तुम्हारा हाल तक नहीं दरियाफ्त करते, उनसे किनारा कर लेने में ही बेहतरी है। तजर्बा ये नहीं कि इंसान के साथ क्या मामला हुआ, बल्कि तजर्बा ये है कि उस सूरत हाल में इंसान ने कैसे बर्ताव किया। जिंदगी के मुश्किल तरीन औकात में तुम तन्हा ही होगे, और ये वक्त तुम्हें मजबूत, मुस्तहकम और निडर बना देगा। किसी शख्स के लिए अपने दिल में रंजिश रखने से उस शख्स को नहीं बल्कि तुम्हें ही नुकसान होगा। अपने दोस्तों को अपनी खुशी के बारे में मत बताओ, ऐसा करने से वो नाखुश होंगे। अपने दुश्मन को अपनी तकलीफ के बारे में मत बताओ, ऐसा करना तुम्हारे दुश्मन को खुश कर देगा। पछतावे की आग में खुद को मत जलाओ, क्योंकि कोई शख्स भी मुकम्मल नहीं है। मायूसी से निकलने के लिए ये 4 असूल अपनाओ, जिंदगी बदल जाएगी।
अल्लाह पर भरोसा रखो। जिंदगी के हर इम्तिहान के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। अगर आज मुश्किल वक्त है तो याद रखो कल आसानी भी आएगी। अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें बेहतरीन रास्ता दिखाएगा। माजी को भूल कर आगे बढ़ो। जो हो चुका उसे बार बार सोच कर खुद को तकलीफ देना छोड़ दो। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे माजी की जंजीरों में जकड़ कर जाया मत करो, बल्कि हाल को संवारो। मुस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारो। वो लोग जो तुम्हें हौसला देते हैं, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाते हैं, उन्हीं के करीब रहो। मनफी सोच रखने वालों से दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हारी मायूसी को मजीद बढ़ा देंगे। शुक्रगुजार बनो। जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब तुम अपनी नेमतों पर ध्यान दोगे और उनकी कदर करोगे तो दिल खुद ब खुद मायूसी से निकलकर खुशी की तरफ मायल होगा। अगर तुम अपने घरेलू मामलात में नाकाम हो तो बाहर की जिंदगी में जितने भी कामयाब हो जाओ, उस नुकसान का अजाला नहीं कर सकोगे। अगर तुम्हें किसी के बर्तन में नजर डालनी ही है तो सिर्फ ये देखने के लिए डालो कि उसके पास मुनासिब मिकदार में खाना मौजूद है या नहीं। जब अपनी मंजिल से नजर हटा लो तो रास्ते की रुकावटें बहुत खौफनाक लगने लगती हैं। हर वो शख्स जिस पर तुम एतमाद करते हो वो काबिल एतबार नहीं होता। जब सुबह आपकी आंख खुले तो वो वादा याद करो जो रात सोने से कबल अपने आप से किया था। जो लोग आपसे मोहब्बत का दावा करें उन पर खास नजर रखें, क्योंकि अक्सर औकात वो हकीकत में आपसे मोहब्बत नहीं करते। किसी शख्स का राज बयान करना धोखा है और अपना राज किसी को देना बेवकूफी है। तुम्हारा हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन तुम एक बुरे दिन का सामना अच्छे बर्ताव के साथ जरूर कर सकते हो। तलबा का बुनियादी काम तालीम हासिल करना है, लेकिन अगर मुल्क के समाजी और माशी हालात को जानना, समझना और उनमें तब्दीली लाना उस तालीम में शामिल ना हो तो मैं ऐसी तालीम को बेकार समझता हूं। किसी कौम को खत्म करने का पहला कदम उसकी यादाश्त को मिटाना है। वो वाहिद शख्स जिसे तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे ख्वाबों के पूरा होने की परवाह है, वो तुम खुद हो। खतरात का सामना किए बिना कभी कोई बड़ा मकसद हासिल नहीं हुआ। हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यही जिंदगी है। अगर तुम्हें परेशानी या बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है तो एक बार इस बात का यकीन जरूर कर लो कि तुम्हारे इर्द गिर्द बेवकूफ लोग तो मौजूद नहीं हैं। किसी की जात के बारे में अंदाजा लगाना हो तो दौरान गुफ्तगू उसके सवालों पर गौर करो, ना कि उसके जवाबों पर। जब कोई शख्स आपको अहमियत देना छोड़ दे तो ये 7 गलतियां कभी ना करें। नंबर 1, बार बार पैगामात या कॉल्स करके उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश ना करें। ये आपको कमजोर और जरूरतमंद जाहिर कर सकता है और आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह करता है। नंबर 2, अपनी जात की कदर करें और याद रखें कि किसी का रवैया आपकी अहमियत का तयन नहीं करता। अपने अंदर एतमाद और खुद एतमादी को बरकरार रखें। नंबर 3, हालात को कबूल करें और खुद पर काम करें। दूसरों पर इल्जाम ठहराने से आपकी जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आएगी।
नंबर 4, अपनी तरफ से अजाफी वजाहतें ना दें कि आपने क्या गलत किया या क्या नहीं। यह रवैया आपको ज्यादा कमजोर जाहिर कर सकता है। नंबर 5, अपने जज्बात, सेहत और खुशियों को कभी ना छोड़ें। अपने आप पर तवज्जो दें और अपनी जिंदगी को मुतवाजन रखने की कोशिश करें। नंबर 6, अगर वो आपसे दूर जा चुके हैं तो उनके पीछे भागने से मजीद तकलीफ हो सकती है। अपनी खुददारी को बरकरार रखें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। नंबर 7, मायूसी, हसद और मनफी ख्यालात से खुद को बचाएं। मुस्बत रवैया और खुद एतमादी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी और आपको सुकून मिलेगा। रफ्तार से ज्यादा अहम हमेशा सिमत हुआ करती है। अपने माली मामलात को अपने काबू में रखो, वरना तुम उनके काबू में आ जाओगे। अपना हकीकी रूप लोगों के सामने रखो, ऐसा करने से सबका वक्त बचेगा। जिन लोगों के साथ होते हुए तुम्हें अपना आप तन्हा महसूस हो, ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो। बुरे लोगों की सोहबत से तन्हाई बेहतर है। परेशानी एक बुरी बला है, ये सब कुछ ले जाती है और बदले में कुछ नहीं देकर जाती। मैं कितनी बार भी गिरूं, मैं एक बेहतर इंसान बनकर उठूंगा। एक इंसान सबसे बेहतरीन कदम वही ले सकता है जो अगला कदम हो। जो चीजें आज तुम्हारी मलकियत में हैं, कल नहीं होंगी। अगर तुम किसी और के ख्वाब पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो दर हकीकत तुम अपने ख्वाबों को कुर्बान कर रहे हो। जो दिन तुमने फारिग बैठ कर गुजारे, वो तुम्हें कभी याद नहीं आएंगे। जिंदगी में माजी के तजर्बों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सच का सामना करना तलख जरूर हो सकता है, लेकिन यह उससे कहीं आसान है कि सारी उम्र आप उस सच से भागते रहें। गरीब इंसान सारा साल तकलीफों, आजमाइशों से तड़पता रहता है। अगर साल में एक बार मुस्कुरा दे तो हम तस्वीर उतार कर कहते हैं कि खुशी का ताल्लुक पैसे से नहीं है। किसी को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन उसका अंजाम आखिर में आपके लिए बहुत बुरा होता है। जिस जगह तुमने अपना सुकून गवाया हो, वहां उसे दोबारा तलाश मत करो। बोलने से ज्यादा सुनने को तरजीह दो। दानाई खामोश रहने से ही मिलती है। मुश्किल का सामना करते हुए ही तुम्हें उससे निकलने का रास्ता मिलता है। जितना तुम खुद पर तवज्जो दोगे, उतना ही तुम्हें लोगों की जरूरत कम महसूस होगी। जो शख्स तुम्हें पाने के लिए अपनी अना की कुर्बानी दे डाले, तो ऐसे शख्स को हमेशा अपने करीब रखो। जो शख्स तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून का बाइस बने, वही तुम्हारे वक्त का सबसे ज्यादा हकदार है। अगर तुम हर दूसरी चीज और शख्स को खो देने से डरते हो, तो जान लो तुम्हें खुद से ज्यादा उन चीजों की परवाह है जो कि तुम्हारी ज़हनी हालत के लिए नुकसानदेह है। तुम्हारी जिंदगी के मसाइल को कोई और शख्स हल नहीं करेगा, ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। दोस्तों के मसाइल आपके मसाइल बन जाते हैं, इसलिए जितने कम दोस्त होंगे उतने ही कम मसाइल होंगे। मुश्किल तरीन चढ़ाई के बाद ही सबसे खूबसूरत मंजर देखा जा सकता है। अपने दोस्त से कभी भी ऐसी बात का जिक्र मत करो जिसके बारे में तुम चाहते हो
کہ तुम्हारे दुश्मन तक न पहुंच पाए। एक अक्लमंद आदमी लोगों की घटिया तनकीद का जवाब 7 तरीकों से देता है। नंबर 1, अक्लमंद शख्स समझता है कि हर तनकीद का जवाब देना जरूरी नहीं। बाज औकात खामोशी ही बेहतरीन जवाब होता है जो आपके वकार को बढ़ाता है। नंबर 2, मनफी तनकीद का सामना मुस्बत अंदाज में करें ताकि आपका सुकून और इज्जत बरकरार रहे और दूसरे आपकी संजीदगी को महसूस करें। नंबर 3, अक्लमंद शख्स बेमायनी बातों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ वो तनकीद कबूल करता है जिससे उसे कुछ सीखने का मौका मिले। नंबर 4, अक्लमंद शख्स दूसरों के ख्यालात से मुतासिर हुए बगैर अपनी सलाहियतों पर यकीन रखता है जिससे मनफी बातें उस पर असरअंदाज नहीं होती। नंबर 5, हर तनकीद को दिल से ना लगाएं। ये समझें कि बाज लोग महज अपनी समझ की कमी की वजह से मनफी बातें करते हैं। नंबर 6, अक्लमंद शख्स अल्फाज से ज्यादा अपने मुस्बत और कामयाब आमाल से जवाब देता है जो तनकीद करने वालों को खुद ही खामोश कर देता है। नंबर 7, अक्लमंद शख्स तनकीद करने वालों को दिल से माफ करता है और अपने सुकून को तरजीह देते हुए उनकी बातों को भूल जाता है। इन तरीकों से अक्लमंद इंसान ना सिर्फ तनकीद का बेहतरीन जवाब देता है बल्कि अपनी इज्जत और सुकून को भी बरकरार रखता है। अगर थक जाओ तो आराम करो, लेकिन कोशिश करना कभी मत छोड़ो। जिन दिनों में तुम खुद को सबसे ज्यादा कमजोर समझो वही दिन दर हकीकत तुम्हारी जात की बेहतरी के दिन होते हैं। अमीर होना चाहते हो तो अपनी सेविंग को अपनी आमदन की नजर से देखना शुरू कर दो। कहीं पहुंचने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़कर जाना जरूरी होता है। इखलाक और ज़र्फ का इम्तिहान ताल्लुक के खात्मे के बाद शुरू होता है। इंसान को मारती हमेशा मोहब्बतें हैं, नफरतें तो जीना सिखाती हैं। अगर आपकी तारीफ की जाती है तो मोहतात रहें। इसका मतलब है कि आप सिर्फ इस बात का यकीन कर सकते हैं कि आप अभी तक अपने सच्चे रास्ते पर नहीं हैं बल्कि किसी और के रास्ते पर हैं। मुशाहिदे से अक्ल में इजाफा होता है और नजरअंदाज कर देने से ज़हनी सुकून मिलता है। जिस चीज से तुम्हें खुशी मिले उसके बारे में सबको मत बताओ। शिकस्त में हजारों सबक मौजूद हैं जबकि फतह में सिर्फ एक ही सबक है। जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बेसुकूनी हो तो तुम ज़हनी तौर पर कमजोर हो जाते हो।